Perfect. Snacks and out there. You let me know when you want to do that. All right? Thank you, man. Bless you. All right. Thank you. शाहरुख आज सुबह ही हमने सवाल किया था. आज हमने सारे रीडर्स को अपने हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी सारे साइट्स पे हमने एक सवाल किया था. शाहरुख को आप किस तरह से देखना चाहते हैं? रोमांटिक देखना चाहते हैं, एक्शन में या नेगेटिव में? आप बताइए कि आपको क्या लगता है, रीडर्स ने क्या जवाब दिया होगा? आई थिंक अमूमन जब मैं लोगों से बात करता हूँ या अपने घर वालों से या अपने जो एक्टर एक्ट्रेस फ्रेंड हैं, तो वो यही कहते हैं कि रोमांटिक रोल करे तो अच्छा है. यस. लेकिन एज एन एक्टर मुझको क्या होता है, एक ही चीज़ बार बार करते रहो तो खुद थोड़ी किंदराहट सी हो जाती है. और फिर आई डोंट थिंक हर कोई एक इस जॉनर की फिल्म हर कोई अच्छा बनाता है. अलग अलग लोग, अब जैसे यश जी हैं बहुत अच्छी बनाते हैं, करण शायद अच्छी बनाते हैं, इम्तियाज़ अली अच्छी बनाते हैं. एक दो डायरेक्टर्स हैं जो मुझे लगता है इस जॉनर में जिनका बहुत अच्छा द वे दे मेक इट. सो आई ऑल्सो गेट बोर्ड समटाइम्स. फिर अब मेरे बच्चे हो गए हैं तो लड़के को कुछ अच्छा लगता है एक्शन, लड़की को कुछ और अच्छा लगता है. एंड आई माई सेल्फ हैव टेस्ट एंड चॉइसेस इन माई फिल्म्स दैट आई वांट टू डू. सो आई काइंड ऑफ I'll just call you back here. I'm on TV. 1 second. So what happens is, as an actor, you feel like doing different things at different state of mind and space. जैसे मैं 2 साल पहले मुझे बहुत चोट लग गई. So I was kind of bedridden for 9 months. At least for an actor, that's bedridden. तो फिर मेरे को ऐसा लगने लगा कि अब मैं शायद एक्शन नहीं कर सकूँगा और चीज़ें नहीं कर सकूँगा. So I said, okay, let me just do a full-on action film like Ravan and Dawn. To actually prove it to myself, that I'm kind of doing okay. It depends on state of mind also. I can't keep doing the same thing. और फिर मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में इतनी सुंदर लड़कियां भी नहीं हैं कि बार बार रोमांटिक फिल्म कर सके, तो वेट करना पड़ता है. सुंदर वाली है. Shahrukh, I mean, you're working in the modern day Dawn, so comparisons with Amit Ji is bound to, I don't think any longer, darling. It's over. The first one was compared, and we had made that film with genuine desire in our hearts and mind, because as a tribute, as a tribute, I'd really thought of it like that. Farhan had grown up watching that film. I've grown up watching that film. Big fans of that film, of Amit Ji and Mr. Barot's work, and everyone, Om Shivpuri. We know every character in that film. So we got this opportunity to make that film with a little bit of difference. All comparison, good, bad, ugly, aside. We never thought we'll make a better film than that. And we still believe we haven't. It was a tribute to introduce people of our age and the younger ones that, listen, there's a film like this and you got to see it. It's really a cool film. Now when we come to the second part, I read Amit Ji's interview somewhere, and he said it very sweetly. And I spoke to him also, and he said very sweetly in the interview कि भाई अब तो जो भी देखेगा डॉन वो समझेगा शाहरुख खान डॉन था. So with all due respect, that really is his graciousness to say something like that. I think he will always be the original Don as far as because जो शुरुआत करता है वही होता है. But I think ये वाली बिल्कुल अलग है. अब ये एक अलग कैरेक्टर है. अब अगर Don 3 आएगी, we can't keep on going back to that comparison. That comparison is overdone and then done with, I think. Nitish, keeping the technology in mind, you have converted the film into 3D. So what was basically the concept behind it? Because Ravan was in 3D, other films coming in 3D, you thought of making this movie in 3D? No, I think like the 3D format in this country is, I mean, we did have it years ago when we did Chota Chetan and these kind of films, and then there was no 3D content. But suddenly, even in the West, the 3D market has just grown. In India, I think when Shah Rukh released Ravan, that time there were only about 300-400 screens which were there. In a matter of almost 2 months after that, there are about 500-600 screens. So I think it's rapidly going. People in India have accepted that format. They like watching, and I don't think they had an opportunity to watch any big film in terms of one of their big actors or big stars film coming in a 3D format. And then when a film like Harry Potter, which was also not shot on 3D, so I think technology, and which is what Reliance MediaWorks has done, or Prime Focus did it with Shah Rukh's film, they've got that technology now in India, and we did a test, and it looked absolutely fine. And I thought maybe if people want to, why not give them both options? So you have a 3D option if you want to watch it in 3D, and if you want to watch it in 2D, you can watch it in 2D. The challenge, you have shown it to the media. Shah Rukh himself has seen it, I suppose. What was the response?
I think the feedback has been very positive of even the 3D. I think people are expecting that 3D means things have to come out of screen. I think those days are gone. Like again, Avatar, very agree. There is, I remember one scene in Avatar where you see something come out of screen. Maybe, yeah, it's maybe sometimes you have to go into it. It depends. If the film's format is something which can go on to 3D, you should do it. I don't think every film lends itself into a 3D, like action films, thrillers, this kind of. In a nutshell, you feel that 3D is now all about depth, all about being there virtually being. I don't know. It depends again on the story. I think 3D again has become on that level of that you need to sit on it on terms of what your script is and what you want to do with it. It all depends on that. It all depends on that. No, I think they're both. There's a different technology. One is when they talk about this is the immersive 3D. Immersive means it gives you a depth of field, which we've always craved for. Even in whenever we're making even a live play, the whole idea is the scenic beauty should be going in. So the immersive part of it, and then there's the obtrusive part, which like Chota Chetan or Michael Jackson's film in Universal, it comes out onto your face. You can actually mix the two if you wish to. You can do it together. You don't have to shoot it in 3D. You can do it in post as well. And they're doing a new film now, I hear, Titanic. They've taken, it's twice the cost of our films. And the cost is more or less the same for us also and Hollywood films when they're doing, converting it. It's about $5 million, $4 million. No, they're like really going a step further and making the depth and the obtrusiveness different. So it's a technology. I think, why should India be bereft? See, when our telephone services are the most advanced in the world because we got it last. In a certain sense, multiplexes and this whole spurt of cinema in India and everybody watching it, we've got it last. So I think we should have the best. And 3D is a step towards that, but every film won't lend itself to 3D. I find it obtrusive. How do you see a romantic film, in 3D? But maybe as the years go by, when the glasses come off, maybe it'll become something that you normally accept from black and white to color, color to 3D. You say in every movie that you do, you expect something different. After the success of Ravan, what's your expectation from this movie? I don't know. I was just telling Ritesh on the car drive, which was a long one here, that I have my family in Delhi, Gauri's family, and my own family is very scattered and very few. But that's like the cross section of the Indian audience. You have my Punjabi Masi, who has certain likings. She said, "Kini tu usse romantic picture hi kiya kar." I have this young cousin brother of Gauri's who's like, "Shahrukh bhaiya, you look so cool, with your beard and the gun. It looks really cool, kick-ass." So and then I have my own wife, who has her own take on what I should do sometimes. She's like, I really like you when the kids like you in a role like this, or my own children. I can't be different in any film. I think anyone who says that is actually not even knowing what work he or she is doing. And without deriding anyone, I think cinema is a storytelling technique. One director wants to tell it one way, another. I've worked too long in this not to understand this. It may be similar to, a love story is a love story is a love story. A boy will meet girl, they will fall in love, they'll have a little bit of dissent, they'll separate and then they'll get back together either at railway station or at the airport. And everything will be hunky-dory and we'll have a nice romantic song somewhere sung in the gardens. So it's as simple as that. They can't be very different, but the process of storytelling is different. So Ravan was actually devised as bringing in a new genre into this country. I think I owe it to the audience that has looked after me for so many years. It is to bring in a new technology and to please a very young set of kids. And when I meet them, and a lot of people turn around and told me, but why would make such an expensive film for kids? But I personally feel a film is a film and it should be made for and it's my future investment. If the kids like me, then as they grow up, they keep liking me. And Don is a completely different take. And kids like this also. It's a negative guy. He's a badass guy. He's really tough and he's mean and there is no justification. I think it's the first time I have played a negative role after Don 1 where the bad guy has no redeeming quality or justification. So the nuances are always going to be different. And with due respect, I don't think the audience really needs to find the boring nuances. Ki isme aisa different tha. They should just enjoy the story, when people tell me, why do you make this film, why do you make that film, why do you make this film? I said, like at the end of the film, you should have 2 hours of, keep it as simple as 2 hours of, yeah, it was nice. Anyone who talks more depth than that about cinema is hogwash. I'll tell you honestly, yeah, we all have very deep thinking about wanting to make a project. Like Chak De India is about patriotism. It's about neo-patriotism. It's about women's rights. Baheli is like that. I believe in all that. I believe in all that personally. But before I believe in all that, I believe in entertaining you. And that's the bottom line.
So I cannot ever let my beliefs bore you. I cannot let my beliefs not entertain you. So you make a Swades, and may not be the most entertaining film. Once in a way you can give in yourself, but would we like to document facts? You know, my daughter, she was seeing a film, and I asked her, she's 11.5 years old, and it's become my mantra now for the next 1 year. I asked her, how do you like the film? She said, just like life. It just passes by. And I'm like, no, we don't want to show you life. You know, we want to show you larger than life, lesser than life, colorful than life, worse than life. You got to see and either be awestruck or feel this is the way you want your life to be. And I'm not saying everything should be Ravan or Dawn. I'm not saying you could have My Name is Khan. I'm just talking about my films only because I don't want to talk about other films and involve other actors or actresses in it. But I think, yeah, the bottom line should be entertainment. And a lot of people question me on this. And, अरे आप सोशली रेलिवेंट चीज़ क्यों नहीं करते हैं, आप देश के लिए क्यों नहीं करते हैं? ऐसे बहुत लोग हैं जो देश के लिए चीज़ें कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए. मेरा काम आप लोगों को हंसाना है, 2 घंटे के अंदर सुख पहुंचाना है कि आप उस 2 घंटे में अपनी सारी प्रॉब्लम भूलकर, बीवी से झगड़ा हुआ है, ऑफिस में प्रॉब्लम है, लड़ाई हो गई है, दोस्ती नहीं हो रही है, नौकरी में थोड़ी तकलीफ है, पैसा नहीं है, ये पिक्चर देख के जब जाएँ तो वो 2-2.5 घंटा ज़िंदगी की जो मुसीबतें हैं वो भूल जाएँ. And it's not escapist, it's not fantasy. It is just a different take on life. I want you to be happy for those 2 hours in the dark room. Great. डॉन का भी रियल लाइफ डॉन से मिलेगा तो क्या रिएक्शन होगा डॉन का? I've met some of them. I will not, without knowing their dons. Fortunately, so far nobody's put a picture of mine with any of them. One day that will also come. But I've met them and I found, मैं दिल्ली का हूँ, तो दिल्ली में शोदे बोलते हैं, शोदे जो होते हैं, फिर ऐसी थोड़ी दादागिरी जो है, तो मैंने बहुत किए दिल्ली में. तो उस ज़माने में बहुतों को मिला हूँ, मुंबई में भी हैं भाई लोग. और एक उनकी एक अजीब सी खासियत ये होती है कि यारों के यार होते हैं, दुश्मनों के दुश्मन. एक उनका अपना हो रहता है. बट आई फाइंड जो असली वाले होते हैं, जो थोड़े बड़े दर्जे के गुंडे हैं या डॉन हैं, वो एक्चुअली बहुत सॉफ्ट स्पोकन और अच्छे होते हैं. और जो शोधे होते हैं वो थोड़े लाउड होते हैं, हाँ कि साले तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा, बे कैसे कर रहा है साले, मार डाले इसको, वो अलग होते हैं. सो आई जस्ट फील दैट व्हाटएवर लिटिल इंटरैक्शन आई हैव हैड, एक्चुअली इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स आई हैव रियली नॉट मेट. मैं जो भी कैरेक्टर नॉर्मली करता हूँ तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उनसे मैं I must have met them only somewhere. You know, you meet people, like if I'm meeting journalists, I'm making newspaper presenters, then I know if I'm doing a character like this, to take something from you and take it back home. But yeah, Dawn is one character that you've not really met. So I don't know, I think I'd be very scared. मैं एक बार एक जगह पर मैं किसी को मिला था और and it was very funny कि मैं जो था, मैं उनसे जो बात कर रहा था ऐसा था कि यार कि वो बुरा ना मान जाए किसी बात का. मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है, कुछ लग जाए बुरा, गोली मार दे. तो उस मोमेंट में जब आपको पता चला कि ये डॉन है, रियल लाइफ डॉन, मैं जब एक्चुअली ना खड़ा हुआ था, एक पब्लिक प्लेस थी, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं ऐसे पब्लिक प्लेस में खड़ा हुआ था और एक साहब बैठे हुए थे, तो वो आए मेरे पास और तो बहुत सारे लोग ऐसे फ़ोटो खींच रहे थे, फैंस. तो ऐसे खींचते खींचते तो मेरी फ़ोटो खींच रहे थे, आई एम अज्यूमिंग. तो फिर ऐसा वो उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि ऐसा कुछ किया, तो वो लोग फ़ोटो खींचना बंद हो गए और चले गए वहाँ से. तो मैंने कहा यार ये कुछ होटल का मालिक होगा जहाँ हम बैठे हुए, वहाँ पे कुछ होगी, इसकी बात होगी भाई, है ना. तो कैसे हो? तो मैं कहा जी ठीक हूँ मैं, और सिगरेट वगैरह पियोगे? तो ऐसे नहीं, मेरे पास अपनी, इसे नहीं मेरी पियो. And he took out a cigarette packet. And then as you were talking, I suddenly came to the realization कि ये जो है ये कोई बहुत बड़े गुंडे हैं. और उन्होंने मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात बोली थी कि मैंने राम जाने देखी, हम ऐसे नहीं होते हैं. तुमने बड़ी ओवर एक्टिंग की थी तुम. मैं सॉरी, मैं मिला नहीं था आपसे, अगली बार जब करूँगा इंशाल्लाह तो मैं कोई वैसा अच्छा कैरेक्टर प्ले करूँगा. But yeah, it was scary, I think. It's scary to meet. However cool and nice we look in films, I think bottom line is, yeah, you get scared when you meet scary people. Dawn देखने के बाद they'll adapt now this. I hope they become as cool as Dawn. अभी कहेंगे कि अभी ठीक एक्टिंग की है. Right, Ankita? आपको जंगली बिल्लियों से मिले हो कभी? कौन सी आपको पसंद क्यों है? कौन सी से मिले सर? Is it from the original film? I think Jangli Billi is from the original film, no? Amit Ji's, yeah, I think, yeah. I think उस सीन के अंदर जो था वो कुछ अटैक करती है अमित जी को, जीनत अमान जी. बट इट्स आई नेवर थॉट कि ये लाइन इतनी पॉपुलर हो जाएगी. यू नो, इट वाज जस्ट वन लाइन इन द फिल्म कि मुझे जंगली बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं. शाहरुख, आपके हम लगातार मीडिया में और हम लोग सब लोग आपके डायलॉग्स चला रहे हैं डॉन 2 पर. कौन सा डायलॉग है जिसको आप कहेंगे ये
मुझे बहुत एक्चुअली मुझे बहुत सारे अच्छे लगते हैं उसमें। एक दो तो हैं जो डायलॉग नहीं है लेकिन ऐसी बातचीत है। जब आप फिल्म देखें उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। बट आई लाइक दिस वन कि डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो डॉन का दुश्मन है। आई लाइक दैट वन। और मुझे एक और लास्ट में है एक फाइट के बीच में कि डॉन का दुश्मन जब तक अपनी पहली चाल चलता है डॉन अपनी आखिरी चाल चल चुका होता है। और बड़ा पॉम्पस है, बड़ा सेल्फ सेंटर्ड नार्सिसिस्टिक सा है डॉन की। अपने मरते वक्त भी वो ऐसी लाइनें वाले बोलता रहता है। बट फिल्म में एक सीन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक मैं किसी को बोल रहा हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो, वो कहते नहीं मैं अब शादीशुदा हो गया हूँ या ऐसा कुछ। तो मैं बोलता हूँ कि दिल का मामला लगता है, अच्छा बताओ मुझे। एंड द वे ही टॉक्स आई रियली लाइक द वे फरहान हैज रिटन इट। जस्ट बिफोर ही सेज सर बहुत शरीफ सा लगता है, कॉल मी डॉन। और उसके बाद वो बोलता है उसको कि बताओ मुझे क्या है ये मामला। I like love stories. So I like the whole idea that Don says I like love stories. बात करते करते आपने बीच में कहा मरते वक्त, क्या डॉन मरता है इस फिल्म में और क्या डॉन 3 बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं एक्चुअली वो डॉन तो हमेशा ऐसी सिचुएशन में होता है कि यू थिंक ही इज गोइंग टू डाई। द मूवी बिगिंस लाइक दैट, ही इज सराउंडेड बाय 10 गन्स पॉलिटिकली करेक्ट। नहीं वो नहीं मरता, डॉन को नहीं मारा जा सकता। ऐसी हम कि पकड़ो ही नहीं तो मरेगा। हाँ पहले पकड़ो तो। और उसमें उसको बिगनिंग ऑफ द फिल्म के अंदर उसको वो कोई ऐसे आपसे जितने आप हैं उतने लोग ऐसे बंदूक रख लेते हैं उसके यहाँ पे। तो उसको ही शुड बी स्कैर्ड एंड ही सेज अरे यार ये आप लोग क्या करेंगे बताओ ना, यहाँ पे कोई अच्छा इटालियन रेस्टोरेंट है। तो वो सब ऐसा बंदूक जो मारने वाले हैं उसको, तो वो किसी इटालियन रेस्टोरेंट इसे हाँ क्या है, तुम लोग को मारने के बाद कहीं खाना तो खाना ही है ना मुझको। तो सोच रहा हूँ आज मैं थोड़ा सा बोलोनेज एंड रेड वाइन खा लूँ। तो सब लोग ऐसा देख रहे हैं। फिर कहता क्यों क्या हुआ, तुम लोग को इटालियन पसंद नहीं, कोई बात नहीं। एंड देन ही बीट्स देम अप। सो ऑलवेज एट द एज ऑफ लाइफ आल्सो ही इज वेरी कूल। थैंक यू यार। चला एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था इसमें रीडर्स के उसमें। एक रीडर लिखा कि मैं भी फरार चल रहा हूँ और मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है, कभी मिलो तो बताता हूँ। क्या रिएक्शन रहेगा शाहरुख का? फरार चल रहे हैं? मैं भी फरार चल रहा हूँ। रीडर क्वेश्चन हमारा फीडबैक आया बहुत से। अच्छा। मैं भी फरार चल रहा हूँ, कहीं मिलो, एक बहुत अच्छी स्टोरी है, सुपर फिल्म बनेगी। तो उनको लिख के भेजो कि हम जो है पोस्ट बॉक्स नंबर 00325 दिल्ली के किसी नुक्कड़ पे चुपचाप से मिलते हैं। वो अपने हाथ में लाल गुलाब लेकर आए और उनका कोड होगा, 100 का नोट नहीं लाल गुलाब रखें। और उनका कोड होगा कि आसमान में कितने तारे हैं। मैं बोलूँगा जानी हम तुम्हारे हैं और फिर हम कहानी चेंज करेंगे। वाह ये तो कोडिंग भी हो गई। वीसी पर हम लेके आ रहे हैं आपको। सबसे पहले हमारा औरंगाबाद सेंटर। औरंगाबाद अपना एक सवाल करेंगे, बाकी लोग पॉज रखेंगे। हाँ शाहरुख जी। हाय नमस्कार, कैसे हैं आप? बस मजे में। सर एक सवाल है आपसे कि विश्वनाथ आनंद अपनी याददाश्त ताज़ा रखने के लिए गोलियां लेते हैं, तो डॉन अपने दुश्मनों को याद रखने के लिए क्या खाते हैं? बंदूक की गोलियां खाते हैं। उनको बंदूक की गोलियां खिलाते हैं। राइट। सेकंड सवाल के लिए भोपाल वेट कर रहे हैं आपका। भोपाल या मनीष फ्रॉम भोपाल। हेलो मनीष। या शाहरुख आपसे सवाल है, घर में असली डॉन कौन है? अब तो यार हमारे घर में हमारा बेटा सा डॉन हो गया है, क्योंकि वो एक्चुअली पहले हमारी बीवी होती थी, लेकिन हमारे बेटे की नेचर जो है हमारी बीवी जैसी है। और क्योंकि वो उनमें छोटा है तो वो उसके ऊपर बॉस करता है। आई थिंक माई सन इज द बिगेस्ट डॉन। वो जो बोलता है वैसा ही होता है, जो करता है हम लोग बस बैठ के उसका पैर वैर दबाते रहते हैं। बड़ा लाड़ों से हमने उसको डॉन जैसा बना दिया घर में। बेटी स्वीट है हमारी बहुत। सर एक और क्वेश्चन है भोपाल से, रामकृष्ण गौतम फ्रॉम भोपाल। हाँ गौतम। सर डॉन में ऐसा क्या है जिससे हम उसे डॉन करें? पहला तो ये है कि सर मत कहो, बहुत शरीफ सा लगता है। मैं एक्चुअली सर शरीफ ही हूँ। हाँ मैं शरीफ ही हूँ। अच्छा मैं तो नहीं हूँ। अब मैं हूँ तो डेफिनेटली मेरी नजर में आप भी शरीफ हैं। तो क्या पूछा तुमने कि डॉन क्या करता है ऐसा? कि डॉन में ऐसा क्या है जिससे हम उसे डॉन करें? मैं क्यों डरूं डॉन से? हाँ क्यों डरो, तुम तो शरीफ हो, तुम्हें तो डरना ही चाहिए। लेकिन आई थिंक उसका सबसे बड़ा प्लस ये है कि वो अपने दुश्मन को ऐसे बात करता है कि उसको यकीन हो जाता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है। एंड डॉन जो है बहुत कोल्ड है, मतलब किसी भी तरह से वो कहीं पर भी कभी भी आपको धोखा दे सकता है और उसको इसमें इंजॉयमेंट मिलती है। हाँ यानी डॉन शरीफ है? बिल्कुल शरीफ नहीं है यार, कभी मिलो तो नुक्कड़ में मिलो भोपाल के तुम मुझे। ठीक है। चंडीगढ़ जी हेलो हाउ आर यू? बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ यार।
इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं आए वहाँ पर हम। मेरा ये सवाल है कि बाजीगर से लेके डॉन 2 तक आपने अपनी एक्टिंग में खुद को कैसे इवॉल्व किया, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें। हाँ, मैंने जब शुरुआत की थी यार, तो मैं ऑब्वियसली आदमी सीखता ही रहता है। आई थिंक मेरे बोलने का तरीका थोड़ा अलग था, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता था। ऑब्वियसली मैं थिएटर से था तो मुझको थोड़ा बहुत अंदाज़ा था क्या करना है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, जैसे जैसे मैं अलग अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करता हूँ, और अब एक फेज़ आया है मेरी ज़िंदगी के अंदर, जो नए एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ काम करता हूँ, तो मुझे ये समझ आता है कि उनका सीन को अप्रोच करने का तरीका, नज़रिया बिल्कुल अलग है बनिस्बत जैसे मेरा है। और एक्टर हूँ करके कहीं ना कहीं पर मैं अपने आप को उस रंग में ढालना शुरू करता हूँ। सो फ्रॉम बाजीगर टू डॉन आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ठहराव आ गया है मुझ में एज एन एक्टर। और जो लाइंस हैं मैं बोलता था शायद उतनी अच्छी तरह उनका डीपर या सबटेक्स्ट मीनिंग नहीं समझता था, अब समझने लग गया हूँ, और कभी कभी खुद भी लाइंस का सबटेक्स्ट आगे ले आता हूँ। और थोड़ा कंट्रोल है, थोड़ा सा आई थिंक जो मेरे अराउंड स्पेस होती है जब मैं एक्टिंग करता हूँ, उसको मैं अब बेहतर कंट्रोल करने लग गया हूँ। अभी तकलीफ नहीं होती कि हाथ कहाँ पे रखूँ, ये एक्टर्स की थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो आई वुड लाइक टू बिलीव आई हैव इवॉल्व्ड एज एन एक्टर, वेदर इट्स से माय नेम इज खान, आई कैन स्टिल डू राजू बन गया जेंटलमैन, but I truly feel that certain roles I've done now are only possible because I've learned a lot as I've gone along from a lot of good directors, good writing, and some really wonderful co-actors and actresses. चलिए हम वापस आपके पास आ रहे हैं। इंदौर जी, आपका सवाल। जी शाहरुख जी, नमस्कार। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ यार, अभी अभी आए ना हम इंदौर से, परसों। आपसे मिलके गया था इंदौर। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने चक दे इंडिया में हॉकी के कोच का रोल किया, अब आपने डॉन कर ली, और वैसे कौन सा कैरेक्टर है जिनको आप अभी करना चाहेंगे आगे? आपका ड्रीम कैरेक्टर मतलब अगर कोई बच्चा है या है? नहीं, अभी शुरुआत में मैं ऐसा सोचता था कि मुझको कोई एक ऐसा रोल मिले, फाइटर का रोल मिले या जेम्स बॉन्ड का रोल मिले। अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझको जो भी कोई समझे कि मैं कोई रोल अच्छा कर सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश करके उसमें ढलने की कोशिश करता हूँ। ऑफ कोर्स हमारा कमर्शियल सिनेमा है तो हर रोल इतना सीरियस नहीं होता, जैसे कबीर खान है या फिर स्वदेश का मोहन भार्गव है। सम रोल्स नीड टू बी प्लेड लार्जर देन लाइफ लाइक डॉन। बट मुझे अब ये लगता है कि कोई ना कोई डायरेक्टर मेरे पास कोई नई चीज़ लेके आए। जब करण ने मुझे माय नेम इज़ खान करने को कहा कि एक ऑटिस्टिक एस्पर्गर्स का कैरेक्टर है, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। और मुझे अब कॉन्फिडेंस भी हो गया है कि मैं शायद कुछ नया मुझे मिले, अलग मिले करने को, तो मैं कोशिश करूँगा। जैसे डॉन में भी फरहान ने एक अलग सा लुक और एक स्टाइलिंग मुझे बोला करने को। सो मे बी 4-5 years ago आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू इट, क्योंकि मुझे उस पर यकीन नहीं था। लेकिन अब ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया। एंड आई डोंट नो, एनी रोल दैट इज गिवन टू मी आई वुड लव टू डू इट। आई मीन आई वुड लव टू डू मोर रोल्स विच यंग पीपल लाइक, एंड व्हेन आई से यंग चिल्ड्रन आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ किड्स। स्टाइल से मुझे याद आया, शाहरुख आपकी पोनी बहुत अच्छी लग रही ये ना? है। ये क्या बेसिक क्या है इसके पीछे? कहते हैं फरहान और आपने मुझे कुछ ऐसा प्लान किया है कि डॉन को पोनी होनी चाहिए? नहीं, ऐसा है कि मैं उन थोड़े से एक्टर्स में से हूँ जिनके बाल अभी तक झड़ते नहीं हैं। गुड बात। तो मेरे उग सकते हैं इसलिए उगा लेता हूँ। हाँ हाँ, पूछिए सर। और साथ में रितेश जी से भी वो ये कि आजकल एनआरआई ऑडियंस को ध्यान में रखकर के बहुत सारी फिल्में बन रही हैं। एनआरआई ऑडियंस को ध्यान रखते, नहीं, ऑडियंस को ध्यान में रखिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक अपनी जो इंडियन ऑडियंस है वो जैसे यहाँ पे इट इज द सेम देयर, सो इट्स नॉट दैट एज इंडियन ऑडियंस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, वहाँ पे भी सेम है। तो आई डोंट थिंक इट्स बीइंग सेंट्रल, बट एक ग्लोबल ऑडियंस बन चुकी है फिल्मों की। इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर, बिकॉज इंडिया में भी जो 5 साल पहले फिल्में बनती थी और अब बन रही है वो चेंज होती जा रही है। बिकॉज आई थिंक इंडिया के अंदर अभी टीवी पे तो चैनल्स are playing movies which are foreign language film, जो पहले नहीं आती थी। तो अभी 2 चैनल है जो थ्रू आउट द डे सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज फिल्म प्ले करती है। तो आई थिंक ऑब्वियसली इंडियन फिल्म मेकर्स आर ऑल्सो इवॉल्विंग विथ स्टोरी टेलिंग, तो वो एक ही जैसे है। जयपुर सेंटर जी, शाहरुख, मैं सूरी जयपुर से। हाय सूरी, हाउ आर यू? बस फाइन, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया यार, थैंक यू। अच्छा, अभी आपने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसी लड़कियां बची नहीं कि आप रोमांटिक फिल्म बनाएं, तो क्या अब एक्शन का दौर आ गया आपका? नहीं यार, तलाश जारी है। मैंने अपने आदमी चारों तरफ आदमी फैला दिए। तुम भी अब जयपुर में अपनी आंखें जरा खोल के रखो,
कोई दिखे वहाँ पे? नहीं, मैं मजाक कर रहा था. I think they are very beautiful girls and they're really wonderful people. मैं अभी जो नेक्स्ट फिल्म कर रहा हूँ 12 दिन के बाद, वो आई थिंक ऑल एंड आउट रोमांटिक फिल्म है. उसमें अनुष्का हैं और कटरीना हैं, यश जी बना रहे हैं. सो उसका नाम नहीं रखा अभी हमने. सो यू नो, मेरे को डिफरेंट फेज में, जैसे मैंने बताया मुझे चोट लगी हुई थी, देन आई वांटेड टू डू सम एक्शन टू प्रूव इट टू माई सेल्फ कि मैं अभी कर सकता हूँ. तो अभी मेरा बहुत दिल है कि मैं कोई कॉमिक फिल्म करूँ या फिर कोई रोमांटिक फिल्म करूँ, थोड़ी ईजी गोइंग फिल्म करूँ. सो अभी मुझे ये रोमांटिक फिल्म ऑफर हो गई, कोई कॉमेडिक फिल्म ऑफर होगी तो वो भी कर लूँगा. And I truly believe we are in very good times as far as actors and actresses are concerned. I think the young girls and boys are really good. और बहुत confident हैं, बहुत खूबसूरत हैं और काम बहुत professionally करते हैं. I think मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा professionally. They're there on time, they work hard on characters, they can play. जैसे अभी विद्या बालन जी हैं, she can play a normal commercial film and can do a fantastic role in Ishqiyan or Dirty Picture. Katrina है, you know, she can do a Rajniti and she can do Sheila की जवानी. हमारी फिल्म की हीरोइन है प्रियंका. She can do a Dawn and she can do सात खून माफ. So I think बहुत स्कोप लड़कियों ने बढ़ा लिया है. I think it's really wonderful कि ऐसे ऐसे एक्टर्स हमारे बीच अब आ गए हैं जिनमें इतनी हिम्मत है and I think इतनी काबिलियत भी है actually. So there is no paucity of girls. I was just joking. रायपुर आप लाइन पर हैं? हाँ रायपुर वरुण. हाय शाहरुख. Hi Varun, how are you? हेलो शाहरुख. ऑलवेज फाइन सर. Thank you. हमारे पास कुछ हमारे पाठक भी हैं और हम लोग सारे श्री भास्कर के लोग हैं. तो सबसे पहले मैं रीडर से आपकी बात कर रहा हूँ प्लीज. अभी एक बार में देखिए, एक बार में एक सवाल कर लीजिए प्लीज, फिर हम वापस आएंगे आपके पास. जी नमस्कार सर. नमस्कार. सर साहब एक आपसे मेरा प्रश्न है कि पिछले 5 से 7 सालों में या 10 सालों में ऑडियंस की मैच्योरिटी में कितना अंतर आया है? एक्चुअली मेच्योर गलत शब्द है. मुझे लगता है ऑडियंस का टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ गया है. स्पेक्ट्रम अगर हम सोचें कि पहले हमको एक किस्म की फिल्में अच्छी लगती थी, लेकिन टीवी की वजह से जैसे सोशल फिल्में हैं कि घर की बात, घरेलू बातें, तो वो फिल्मों की तरफ ध्यान थोड़ा कम हो गया है क्योंकि टीवी में वो इतना आता है अब कि घर वाले वो घर में देख लेते हैं. सो अभी क्या होगा, शायद मैं ऐसा कई फिल्में बहुत, कभी खुशी कभी गम बहुत खूबसूरत फिल्म है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की दौर में, हालांकि उतनी ही सुंदर फिल्म है, शायद लोग उसको देखने जाए क्योंकि टीवी में उनका वो सेशिएट हो जाते हैं कि यार वो घरेलू बातें, भाई का बिछड़ना, बाप से झगड़ा, ये सब बातें हैं. सो एज द मीडियम्स आर चेंजिंग, आई थिंक लोगों का मेच्योरिटी नहीं, आई थिंक ऑडियंस बहुत मेच्योर हमेशा रही है, बट स्पेक्ट्रम ऑफ चॉइस बदल गया है. हमारी कंट्री जो है अभी 25 साल, आई थिंक 25% ऑफ अ कंट्री इज अंडर द एज ऑफ 30. सो ऑब्वियसली जो यूथफुल सोच है तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. हम कभी ऐसा सोच भी, जब मुझे कहानी सुनाई थी रितेश ने, हम दोस्त हैं, हम सबको अपनी एक दूसरी कहानियां बताते हैं, तो उसने मुझे बोला कि ऐसे 3 लड़के एक रोड ट्रिप पे जा रहे हैं. मैं कहा ये क्या मतलब है यार, कहाँ जा रहे हैं सड़क पे यार तुम घूमने के लिए, सोचो ना घर सड़क पे निकल जाएंगे. बट द यंगर जनरेशन लाइक्स दैट. सो यू हैव अ वाइडर स्पेक्ट्रम. तो दिल्ली बेली भी सबको पसंद आएगी, जिंदगी में ना मिलेगी दोबारा, बॉडीगार्ड भी पसंद आएगी, बिकॉज दैट इज वेरी वन-on-one टपोरी फिल्म जिसके अंदर दादागिरी, जो एक 80s का फॉर्मूला होता था. तो स्पेक्ट्रम बहुत बढ़ गया है, आई थिंक मोर देन मेच्योरिटी, विच इज अ वेरी गुड साइन. एवरीवन कैन मेक अ फिल्म लाइक दे वांट. जी 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 सर, एक और प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ कि आपकी पिछली फिल्म रावण थी, उसका एक बड़ा कैनवास था. हेलो. हाँ जी, हाँ जी. हाँ हाँ सर, उसमें एक्सपीरियंस क्या रहा आपको? क्या लगा कि आपने कौन सा ऐसा काम किया जो आप अगली अपनी फिल्म साथ नहीं करना चाहेंगे? एक बड़ी पिक्चर थी, हाई प्रोफाइल फिल्म थी, ऐसा क्या उसमें लगा ऑडियंस के रिएक्शन से कि आगे आप उसको नहीं करना चाहेंगे? वो लर्निंग जाना चाहते हैं. हाँ, लर्निंग जाना चाहते हैं आपकी. हाँ नहीं, मैं अगर मेरे हिसाब से अगर एक्टर अपनी फिल्मों से सीखने लगे तो फिर वो एक्टर ही नहीं है. मैं तो जो अच्छी चीज़ें करता हूँ उससे भी नहीं सीखता हूँ, जो गलत चीज़ें करता हूँ उससे भी नहीं सीखता हूँ, बस करता हूँ और जो दिल में आ गया. आई थिंक एक्टिंग शुड बी लेफ्ट फ्रॉम द हार्ट. ज़्यादा सोच कर करो ना तो फिर वो डॉक्टरी हो जाती है. तो आई डोंट लाइक थिंकिंग लाइक दैट. आई जस्ट लाइक टू डू द फिल्म दैट आई लाइक टू डू. मुझे लगा कि मैंने देश में एक नई टेक्नोलॉजी ले आएंगे. मैं 9 साल से उस पर काम कर रहा था. हमने बहुत अच्छा ऑफिस बनाया है VFX का. उसका इंट्रोडक्शन होगा, मुझको नहीं दूसरी फिल्मों को फ़ायदा होगा उससे. बच्चों के लिए आई थिंक बहुत ज़रूरी है हम एंटरटेनमेंट हमारे देश में लाएं, क्योंकि उनके लिए ना हम कार्टून अच्छे बनाते हैं, ना प्रोग्राम अच्छे बनाते हैं. वहीं हैं अभी हम जहाँ थे, गंदी गंदी छोटी सी कहानियों की किताबें जो मज़ा ही नहीं देती. सो आई थिंक वी नीड टू इंक्रीज डिफरेंट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर डिफरेंट पीपल इन आवर कंट्री. सो रावण वॉज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन.
और मैं एक सर, हेलो। हाँ हाँ सर, सर एक आखिरी आपसे प्रश्न है कि आपकी शुरुआती फिल्म बाजीगर का रीमेक बन रहा है, बाजीगर को फिर से बनाया जा रहा है, आपको उसमें जो रोल था उसको नील कर रहे हैं, नील केस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उसका रीमेक आना चाहिए था? अरे यार जैसा तुम बोगे वैसा ही मिलेगा। मैं दूसरों की रीमेक कर रहा हूँ, मेरी अब दूसरे रीमेक कर रहे हैं। सही है, मेरे को अब मुझको ये सही सीख मिल रही है मुझको। औरंगाबाद वापस एक बार आ रहा हूँ, औरंगाबाद 1 मिनट हो गई, औरंगाबाद। हाँ जी, हाँ रायपुर, रायपुर आइए। हाँ रायपुर, हाँ ओके, हाउ आर यू? जिस सॉरी जिस इंटेलेक्चुअल ग्रुप को हाँ, ऐसे मुझे ऐसा लगता है पढ़े लिखे लोग आ ही नहीं रहे हैं फिल्मों में। आई थिंक दे शुड ऐसा लगता है रावण बाहर आ जाए। Internet speak. Too many things They happening. bring We have down like lives. remakes, we have अलग फिल्म बोला। थोड़ा Ravin, मैं पूछूं आपसे एक सवाल? What was the scene which you felt was the most challenging in the movie? What was the most challenging? Challenging scene which you felt? I think it was the car chase sequence which we have in the film. Matlab in terms of to shoot and to do it, because it involved almost we were shooting it almost about 9 to 10 days shooting this car chase, जिसमें almost 25 या 30 गाड़ियाँ were being used. You have to cordon off roads because जैसे बर्लिन में shoot करना is not easy. And जो फरहान और एक्शन टीम को चाहिए था, they wanted to shoot at Brandenburg Gate जहाँ पे US consulate है, and it's the most popular site of Berlin. तो उसको cordon off करके lock off करना was not easy. और हर दिन का you have to give them information because it's not like in India. वहाँ पे they announce on radio, on people लोगों के satellite पे जाते कि there's a shooting happening in this area. So these are the alternate routes. So I think that we've never done it before in a film at least. So it was very like learn करने का experience भी हो गया कि this is how it was. I mean nobody would imagine कि इन लोग satellite पे already इनके GPS पे देते कि you cannot use this route because there's filming happening there and these are the alternate routes to be provided. So I think that was a difficult part. And then there was one where Shah Rukh decided to jump from the building and do it himself. How was that experience, Shah? Jumping, हमने फरहान को पहले जंप करवाया। हाँ एक्चुअली हमें करना नहीं था दोनों को। मैं पहले वहीं पहुंचा था। सबसे ऊंची बिल्डिंग है 450 फीट की, और फिर कुछ लाइट जा रही थी। तो फरहान ने कहा कि पहले मैं सोच रहा था कि तुम्हारा अलग लूँगा नीचे उतरने का हिस्सा, बट अब क्या सब साथ में लेना पड़ेगा बिकॉज एक ही चांस मिला है, तो तुम कर लोगे? तो मैं कहा मैं कर दूंगा। तो मैंने उससे बोला तुम कर लोगे? मैं तो कर दूंगा दोस्त। तो ये सेड कि हाँ मैं ट्राई करता हूँ। इट वॉज वेरी सेफ, कोई उसमें गलती नहीं है। आई थिंक दूसरे लोग भी आके करते हैं वहाँ पे जंप, बट वो जो छलांग मारनी होती है उसमें डर लगता ही है, कितनी भी छलांगे मार लो। सो आई थिंक फरहान डिड इट फर्स्ट, फिर उसके बाद मैं भी गया। लटका, वो जो लटक के करना होता है थोड़ा डर लगता है, और तब ऐसी बातें आती हैं ख्याल में कि ओफो, दैनिक भास्कर वालों ने भी सारा रिसर्च किया था, बताया था रोमांटिक पिक्चर करो, एक्शन पिक्चर मत करो, क्यों कर रहे हो ये सब। तो ऐसा दिल में आता है, लेकिन you have to do it because it's fun also. Sometimes it's important to prove to yourself you can do these things. आपको लगता है कि जनरली फिल्म कंसेप्शन एक ऐसी चीज़ होती है कि जो एक्शन स्टंट्स होते हैं, जो सबसे डेयर डेविल स्टंट होता है, फिल्म के लास्ट में फिल्म आया जाता है कि पूरी फिल्म कंप्लीट हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं होता है। उसके बाद तो आपकी फिल्म में ये पहला, आई थिंक आप वहाँ पहुँच के पहले दूसरे या तीसरे दिन में ही आपने नहीं, लेकिन हम जो चीज़ लोकेशन वाइज शूटिंग होती है, इवन रावण का भी क्लाइमेक्स हमने पहले किया था। जो लोकेशन पहले होती है उसको करते हैं। तो हमारे को ऐसा, हमारा सोचने का नज़रिया दूसरा है कि अगर इसको जाना है तो जल्दी चला जाए, रिप्लेस करके दूसरे हीरो को ले लें। हमारा ये नहीं है कि सब खत्म हो जाए उसके बाद रिप्लेस नहीं कर सकता, कंटिन्यू में फंस जाता है। जयपुर आप आ गए क्या? रायपुर था ना? जयपुर, रांची बाकी, चलिए रांची आप बताइए। हाय। देखिए आपकी दो फीमेल फैंस यहाँ पे हैं, इसलिए 2 सवाल। ओके। सुनने में आया है कि 2 स्टेट्स चेतन भगत
वो अब हम नहीं बना रहे। मैंने वो किताब पढ़ी, बहुत अच्छी है, चेतन की किताब, और आई थिंक हमारे साथ विशाल भारद्वाज बना रहे थे वो फिल्म, लेकिन मुझे कहीं लगने लगा कि शायद मैं उस रोल के लिए फिट नहीं हूँ, और वो कहानी बहुत अच्छी है लेकिन शायद किसी और को उस पर काम करना पड़ेगा, तो हम नहीं बना रहे हैं अब वो फिल्म। और उस फिल्म में अब कौन है मुझे मालूम नहीं, या कौन बना रहे हैं इस वक्त। ओके, दूसरा सवाल है कि डॉन 4 साल बाद आ रहा है वापस से, और अभी भी उसको 11 मुल्कों की पुलिस क्यों ढूंढ रही है? थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी। नहीं 11 नहीं, हमने एक्चुअली, अगर आप ट्रेलर का डायलॉग सुने तो ओमपुरी जी कहते हैं कि किस किस से बात करूंगा, सारी दुनिया की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। और वो कहता ये अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो ये सुनकर कितना खुश होती। तो कहते तुम्हारा अपने हाथों से गला घोंट देती, इसे नहीं, तुम मेरी माँ को नहीं जानते थे। सो एक्चुअली सारी दुनिया की अब ढूंढ रही है। एक टाइम पे हमने सोचा था 132 करेंगे, फिर हमने कहा रहने दो यार, ऐसा क्या, हमारे हाथ में ही हम जितना मर्जी कर लें। तो हमने उसको पूरी दुनिया की पुलिस कर दिया है। अभी 11 की नहीं है वो डायलॉग, एक्चुअली इसलिए फर्स्ट ट्रेलर में हमने बोला है कि सारी दुनिया की पुलिस अब उसे ढूंढ रही है। 4 साल में डॉन ने किया क्या है? 2 फिल्मों के बीच में डॉन कहाँ रहा? हाँ, एक्चुअली मैंने भी नहीं पूछा डायरेक्टर से कि कहाँ था, लेकिन मालूम पड़ेगा। आई थिंक इतना बड़ा जॉब करते हैं उसके बाद जैसे ना टाइम ऑफ लेते हैं, समर हॉलीडेज पे था 4 साल के लिए, लेकिन आई थिंक ही हैज बीन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कि कैसे वो यूरोप को टेक ओवर करेगा इस फिल्म के अंदर। द आइडिया इज कि वो अब जो है साउथ ईस्ट एशिया में नहीं, अब वो पूरे यूरोप को ओवरटेक करेंगे। जी 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 हाँ, ये रायपुर से हैं। हाँ रावण से रिलेटेड एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी हाँ, वो ये है कि आपने रावण के प्रमोशन के दौरान बार बार ये कहा है कि ये फिल्म आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, ये फिल्म आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं। रावण जब मैंने देखी तो मैंने देखा कि उसमें डबल मीनिंग के डायलॉग्स बहुत ज्यादा थे, उस तरह की कॉमेडी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। तो क्या ये वही चीज है जो आप अपने ऑडियंस को और आप अपने बच्चों को देना चाहते थे? एक्चुअली मैं बताऊं, हम लोग हाँ कुंजम से शुरू होकर जो इसके लिए उसके लिए सबके लिए ये जो डायलॉग्स थे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ क्या ये वही चीज है जो आप अपने बच्चों की ऑडियंस को शो करना चाहते थे? हाँ सी, एक्चुअली हम लोग ना फिल्मों में मॉरल जजमेंट में बैठ जाते हैं। सॉरी, मुझे आपका नाम क्या आपका? माय नेम इज डॉक्टर योगेंद्र लांजेवाल। हाँ योगेंद्र, हम जो है मॉरल जजमेंट में बैठ जाते हैं फिल्मों की, और मुझे लगता नहीं है कि फिल्में जो है हमें उसकी मॉरल आइडियोलॉजी ढूंढनी चाहिए कि अगर ऐसा है तो फिर हम सिर्फ कथाएं और गाथाएं ही बता सकते हैं। अब जैसे डॉन भी फिल्म है, इसके अंदर मैं दुनिया का सबसे बुरा आदमी हूँ, और कई लोग मुझसे पूछते हैं इससे क्या बच्चों पे बुरा असर नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है दुनिया अब आगे निकल पड़ी है। हम लून नमक की बातें अगर करते रहेंगे तो चांद पर नहीं पहुंचेंगे। हम अगर रिप्रेशन में रहते रहेंगे, अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, मेरा बच्चा 14 साल का है और आपके बच्चे हैं? हाँ तो अभी तुम मुझे बताओ, अगर तुम बच्चे हो योगेंद्र, कि तुम्हें कॉन्डम का मतलब पता है? हाँ, और मुझे नहीं लगता कोई 14, 15, 13 साल का बच्चा ऐसा देश में रह गया है। अगर हम ये सोचें कि उसको उसका मतलब नहीं पता है तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। मैं जब छोटा सा था तो मैं हिंदी की गालियाँ सीख गया था, और माँ बाप की जो मुझे इज्जत है ऑब्वियसली उनके सामने हम नहीं देते हैं, हम उनके सामने कोई बदतमीजी नहीं करते हैं। लेकिन अगर मेरे माँ बाप ये सोचते कि मेरे बेटे को गालियाँ आती ही नहीं है तो फिर ये उनकी गलतफहमी होती। आई थिंक वी नीड टू थिंक with the exposure you have on telephones, you have on internet, you have the amount of television programs. मैं न्यूज़ चैनल जब खोलता हूँ तो मुझे ज़्यादा परेशानी होती है कि मेरे बच्चे इस न्यूज़ चैनल से क्या क्या सीख लेंगे। उसके अंदर लोगों के उड़ते हुए सर हैं, एक्सीडेंट हैं, करप्शन है, झगड़े हैं, रायट्स हैं, इतनी चीज़ें होती हैं। आप टीवी के शोज़ हैं, और मैं किसी पे भी बुरा से ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब ये है, ये सच्चाई है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो अलग सोचती है। इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें ड्रग्स करनी चाहिए, इसका ये मतलब नहीं उन्हें गाली गलौज करना चाहिए, उसका ये मतलब नहीं कि उन्हें पोर्नोग्राफिक फिल्म्स देखनी चाहिए, लेकिन उनके पास इस चीज़ का एक्सेस है। जितना जल्दी मैं और आप और मेरे बच्चे हैं, इसलिए मैंने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया। ऑफकोर्स मेरी बेटी का जब बॉयफ्रेंड होगा मैं फिर भी उससे झगड़ा करूंगा, मैं लड़ाई जरूर करूंगा, उस लड़के को डांटूंगा भी, लेकिन अब ये तो मैं सोचकर नहीं चल सकता कि मेरी बेटी का कभी बॉयफ्रेंड नहीं होगा, क्योंकि मेरा खुद मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैंने शादी की है उनसे। सो द आइडिया इज कि वी हैव टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स। और अगर फिल्मों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप ये बातें खुला कर दें तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारी सोसाइटी कम रिप्रेस्ड रहेगी।
अभी मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कहता रावण से ऐसा होगा, लेकिन रेप जो होते हैं, जो लोग छुप छुप के सिगरेट पीते हैं या गर्द करते हैं, क्योंकि हमने इतना रिप्रेस रखा हुआ है अपने आप को, हम घर में बात भी नहीं करते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करते हैं, हम सेक्स एजुकेशन के नाम पर देयर इज नो डिस्कशन एवर। बट मैं अपने बच्चों को, और मैं बहुत ही, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव एंड अ वेरी नॉर्मल फादर बिकॉज दैट्स हाउ आई वाज ब्रॉट अप। आई एम वेरी क्लियर कि मैंने अपने बच्चों को बोला जो चीज़ तुमको सुननी है, बोलनी है, समझनी है, गाली देनी है, किसी से सुनी है, मुझसे आगे पूछ लेना यार, मैं दोस्त हूँ। क्योंकि हम आपस में अगर खुलापन रखेंगे, सो आई थिंक देयर ग्रोथ विल बी बेटर। सो व्हेन आई मेक अ फिल्म फॉर किड्स, whether you watch a film like Shrek or you watch a film like Superman, I don't think we need to keep away some realities कि जो गाली गलौज जो करते हैं, ये सब बोलते हैं, and I know maybe it is embarrassing, maybe it is a thought। अभी I understand कि dirty picture adults है, Delhi belly अलग है, उसमें गाली गलौज है, but I think we have to come out in the open and discuss these things so our children are not repressed। हम ये नहीं, मैं अपने बेटे को ऐसा नहीं बोलता, क्या तुझे गाली आती है, चुप रह, आज के बाद तूने बोला चप्पल मारूंगा। You have to accept कि they have learnt a few things and you have to explain it to them। आप नहीं करेंगे, और आप तो बच्चे हैं, अगर मैं आपको नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा आपको कि कुंजम कुंजम या कॉन्डम कॉन्डम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे हिसाब से जितने लोग हमारे देश में कॉन्डम यूज करें वो बेहतर है, बीमारी नहीं फैलती। ओके, हाँ, हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। एक तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा उनकी आगे है हमसे, और ये बात मैं बिल्कुल खुले होकर बोलूँगा, क्योंकि कई लोग हमसे बोलते हैं कि अरे हमारे लोग बेहतर नहीं है क्या, नहीं है, बहुत क्लियर बात है। सेफ्टी बहुत बेहतर है उनकी, क्योंकि वहाँ के सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है बहुत हाई स्टैंडर्ड के हैं। दूसरा, क्योंकि एक्शन और ऐसी बड़ी फिल्में वहाँ पे हमसे 30 साल 40 साल पहले बनना शुरू हो चुकी हैं, सो आई थिंक उनकी एक्सपर्टीज इन बातों में बहुत है, वेदर इट इज़ वायर वर्क, वेदर इट इज़ कार चेज, एंड 99% ऑफ ऑल द एक्शन दे डू वो पहले से रिहर्स करके, सोच समझ के अपने ऊपर आजमा चुके होते हैं, और फिर हम लोग उस पर करते हैं। थोड़ा महंगा होता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन सेफ्टी बहुत बेहतर होती है उनकी। एंड आई थिंक हमारे देश के अंदर 2 डिपार्टमेंट हैं अभी भी फिल्म मेकिंग में, एक एक्शन और दूसरा स्क्रीन पे राइटिंग, जिसमें बहुत क्षति और कमी है। आई थिंक वी नीड टू डू अ लॉट मोर इन दैट, एंड आई थिंक वी शुड टेक अ क्यू फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड and use their technicians and get them to teach our technicians in screenplay and in action. हेलो सारू जी, हेलो हेलो सर, हेलो मैं दुर्गेश बोल रहा हूँ सारू। हाँ, कैसे दुर्गेश? सर देखो सर, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था सर, आप हॉलीवुड पिक्चर में कोई रोल नहीं कर रहे सर अभी? किसी ने दिया ही नहीं यार। तुम्हारे पास हो कोई पहुंच फोन नंबर हो तो बताओ मुझे, किसी ने ऑफर ही नहीं किया आज तक यार। मुझे तो ये बॉलीवुड में भी बड़ा मुश्किल से देते हैं, 1-2 पिक्चर ही देते हैं मेरे को। अभी तो किसी ने कोई ऐसा रोल ऑफर नहीं किया जिसके अंदर, हाँ सर आप उसमें आते तो कुछ ज्यादा अच्छा लगता उसमें। नहीं, इंशाल्लाह, लेकिन कोई अच्छा रोल हो जिससे ऐसा ना लगे मेरे देशवासियों को कि मैंने ये पिक्चर में काम क्यों किया। अगर अच्छा कोई बेहतर रोल होगा, नहीं तो मेरी तमन्ना यही है कि हम ऐसी हिंदी फिल्म बनाएं जो पूरी दुनिया देखे यार, और हॉलीवुड भी देखे कि क्या कमाल पिक्चर बनाई है। अब लास्ट क्वेश्चन, एक सवाल कर रहे हैं, चलिए आप करिए, उसके बाद फिर हम, चलिए बताइए बताइए। सर, डॉन फिल्म में हमने डॉन की जो स्ट्रेंथ काफी दिखाई है, मुझे ये बताइए कि डॉन की कमजोरी क्या है? मुझे कार्टून्स बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मैं कार्टून्स देखने लग जाऊं फिल्म के अंदर तो मैं किसी का खून वून नहीं करता हूं, आराम से बैठ जाता हूं। और आई थिंक हमारी फिल्म के अंदर हम एक्चुअली ये सॉर्ट ऑफ, कल हम डिस्कस कर रहे थे, फरहान और मैं एक इंटरव्यू कर रहे थे कि और मेरे बेटे ने भी एक्चुअली बोला कि आई थिंक डॉन के अंदर हमने एक थोड़ा सा एक कमजोरी रखी है कि रोमा शायद उसे जितनी नॉर्मल लड़कियां अच्छी लगती हैं उससे ज़्यादा अच्छी लगने लगी है, और थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है उसके पास उसके लिए। एंड अदरवाइज आई थिंक उसकी सबसे बड़ी मतलब ऐसी कोई कमजोरी है नहीं एक विलन के हिसाब से, एक्सेप्ट कि वो शो ऑफ है। मुझे लगता है शो ऑफ बहुत है वो। कभी कभार ऐसा बोलते हैं लोग कि अपने आप में इतना अहंकार होगा तो शायद उसका डाउनफॉल हो जाए। तो डॉन अपने नाम भी वो थर्ड पार्टी पर्सन में लेके बोलता है कि डॉन की सबसे बड़ी गलती है, डॉन के दुश्मन को ये रखना चाहिए, किसी और है। तो थोड़ा शो ऑफ ज़्यादा है, लेकिन अब ठीक है, विलन है तो शो ऑफ भी है तो चलेगा। चलिए एक बार वापस जयपुर आप रह गए थे, जयपुर। जी 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 बॉस। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। शाहरुख, मैं ये जानना चाह रहा हूँ
कि पहले क्या होता था, फिल्म में सिल्वर जुबली हुआ करती थी बिना प्रमोशन के, बिना सिर्फ पोस्टर्स और टीवी प्रोमो के जरिए ही प्रमोशन की बात होती थी। परंतु अब हर कलाकार, हर प्रोडक्शन हाउस अपने अलग अलग शहरों में जाकर प्रमोशन कर रहा है। तो क्या लगता है, कहानी में क्या दम नहीं है इस पर? नहीं, एक्चुअली अब कोई फिल्म सिल्वर जुबली होगी नहीं। वो समा और वो वक्त ख़त्म हो गया है। सिल्वर जुबली इसलिए होती थी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने इस पर थोड़ी स्टडी की है। सिल्वर जुबली इसलिए होती थी कि फिल्में जो थीं पहले 3 प्रिंट निकलते थे मुंबई में। फिर वो फिल्म अगर थोड़ी बहुत महंगा होता था, एक प्रिंट बनाने में 1 लाख रुपया लगता था। तो उस वक्त लोग सोचते थे कि हम अपनी पिक्चर रिलीज़ करेंगे, लोगों को पसंद आएगी तो नंबर ऑफ प्रिंट्स बढ़ाएंगे। तो पहले फ्राइडे को बॉम्बे में रिलीज़ होती थी, फिर सौराष्ट्र में होती थी, फिर गुजरात में, फिर दिल्ली में। तो ऐसा आहिस्ता आहिस्ता करके फिल्म का नंबर ऑफ प्रिंट्स बढ़ के तकरीबन 22 या 30 हो जाता था। 30 लाख रुपया खर्च होता था प्रिंट बनाने के लिए। तो अभी वो वक्त नहीं रहा है, क्योंकि एक तो प्रिंट नहीं रहे, अब डिजिटल हो गए, जिसका खर्चा है ही नहीं अब 1 लाख रुपया। दूसरी बात ये हो गई, फिल्म अब साइमल्टेनियसली रिलीज होती है। तो हर जगह उस फ्राइडे को पूरी दुनिया में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे हमारी फिल्म थी रावण, आई थिंक 5000 प्रिंट रिलीज हुए हैं। तो कहाँ 30 प्रिंट, वो भी कुछ से 20 साल 25 साल पहले, और कहाँ पे 5000 प्रिंट। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और फिर क्या होता है, जब 5000 प्रिंट है, जब मल्टीप्लेक्सेस हैं, अभी मैं कल एक पेपर में पढ़ रहा था कि 50% राइज इन नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सेस इन द लास्ट 1 ईयर। रितेश ने अभी बोला 3D जब हमने रिलीज की थी 250 थे, अभी 600 हो गए थिएटर। हर रोज बढ़ रहे हैं। कह रहा है, मुझे किसी ने बताया, दिन में 3 थिएटर इंडिया में बनते हैं एवरी डे नियरली। सो इफ 3 or 2 थिएटर्स आर बीइंग मेड, द नंबर ऑफ पीपल हु कैन वॉच द फिल्म ऑन द फर्स्ट 3 days इज बिकमिंग मच लार्जर। तो वही बिजनेस जो पहली फिल्म का 6 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, और लोग याद दिलाते थे सिल्वर जुबली है, अब 3 दिन में होता है। अगर बिजनेस 3 दिन में होगा तो बहुत ज़रूरी है कि हम सबको इस बात की इंफॉर्मेशन दे दें कि भैया आज आ रही है, 23 दिसंबर को आ रही है, 23 दिसंबर को आ रही है, और 24 को देख लेना, 25 तक खत्म कर देना। सो यू गो एंड मार्केट इट लाइक दैट। इट हैज़ नथिंग टू डू विद स्टोरी। द हॉलीवुड हैज़ बीन फॉलोइंग दिस प्रोसेस फॉर लास्ट 20 years. You can go and watch a Hollywood film in a theater, 10 लोग बैठे होंगे पहले दिन।